Okay, can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, the So it's a very easy subject, you know. You need to understand it, and by understanding this particular topic, you would be able to write it. First, what is business communication? Before we'll start with business communication, let's try to understand what is communication. What do you think? What is communication according to your viewpoint? Tell me, what do you mean by the term communication? दी मतलब दी जिससे तो हम किसी का बातचीत करना, फीलिंग एक समझ दूसरे को सके। समझ पाना। Yes, exactly. Communication. Communication means when you talk to the next person, maybe the next person, or maybe a group of people, or there are several modes of communication as of now. So, this is what we consider we can consider communication. This is how we can consider communication. Now, business communication is quite different from communication. थोड़ा सा ही difference है communication और business communication में. Now, what do we mean by business communication? So, business communication means any topic or any information, transfer of any sort of information from one person to another, which is related to business will be considered as business communication. Suppose करो आप तीनों किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो एंड यू आर टॉकिंग टू ईच अदर. आप एक दूसरे से बात कर रहे हो एंड यू आर टॉकिंग समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस. आप अपने बिजनेस के बारे में किसी से बातें कर रहे हो. आप चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात कर रहे हो और इट डजेंट मैटर वेदर यू आर आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, this will be considered as business communication. Okay, now business communication is derived from the word communication itself, but business communication is associated with business activities. ठीक है, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, और अगर आप उसी कंपनी के किसी भी मैटर को लेकर के आप बातचीत कर रहे हो, अपने बिजनेस को लेकर के बातचीत कर रहे हो, चाहे आप वहां करो, बाहर करो, सेलफोन पर करो, किसी भी चीज से बातचीत करो, किसी भी पर्सन से बातचीत करो, मैनेजर एचआर से बातचीत कर रहा है, या फिर कोई इंटर्न किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात कर रहा है, चाहे किसी से भी बात करे, ये सारे कम्युनिकेशंस जो होंगे will be considered as business communication. Clear? यस दी। यस यस दी। दी So, key point, basic point जो आपको याद रखना है वो ये है, process of transferring information from one person to another within and outside the business environment is termed as business communication. Now, communication between business parties or people for business related task. This is very important term. Do remember this. Business related task is considered as business communication. Okay. Now, different scholars have given different definitions of business communication. For example, according to Sir W.H., business communication is exchanging business related different views, ideas, and news within the related party. Suppose all of you are working in a company, and in that particular company, one of you is employee, one of you is manager, and you are talking to each other related to your any business, any data information or anything. ओके कोई भी आइडियाज, कोई भी व्यूज, किसी भी चीज पर अगर आप लोग बात कर रहे हो, दैट विल बी business communication. Similarly, Professor J has stated that when the communication occurs between two or more than two business people for the purpose of effective organization and administration of business, then it is considered as business communication. For example, you go to college, and in college, suppose you are talking to your professor or maybe to your colleague related to any study, related to studies or anything related to college programs or anything related to the exams
all these things will come under the category of business communication. कॉलेज भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, तो उसमें भी जो प्रिंसिपल्स होते हैं और प्रोफेसर्स होते हैं वो भी जब एक दूसरे से बातें करेंगे कॉलेज से रिलेटेड या फिर कॉलेज के एग्जाम से रिलेटेड किसी भी और चीज से रिलेटेड, इन सारी चीजों को हम बिजनेस कम्युनिकेशन ही कहेंगे. ठीक है. Yes, जी. Yes, जी. Now, what are the basic elements of business communication? You need to know that. Basic elements: sender, business information, receiver and feedback. क्या क्या है? Sender, business information, receiver and feedback. Now look at this picture. Now sender कौन हो सकता है? एम्प्लॉय होगा, कस्टमर होंगे, बिजनेस पर्सन होंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी, सप्लायर्स होंगे, ये सारे सेंडर होंगे. ये कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो किसे देंगे? अपने ही जैसे एम्प्लॉयज को देंगे. तो ये senders are employees, customers, business persons, government agencies, suppliers हैं, and they will give business information. So ये business informations देंगे. Business information such as memos, letters, reports, data, several other things could be there. तो ये किसे शेयर करेंगे? ये informations वो किसे शेयर करेंगे? तो the receiver भी अब कौन होगा? तो receiver भी कोई employee ही होगा ना. एम्प्लॉय होगा, कस्टमर होगा, बिजनेस पर्सन होंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी, सप्लायर्स होंगे. ठीक है. मे भी ऐसा हो सकता है कोई इंटर्न अपने देगा, या तो फिर कोई मैनेजर अपने इंटर्न को, अपने एम्प्लॉय को डेटा देगा, कोई भी इंफॉर्मेशन देगा. तो वही चीज यहाँ पर दी गई है कि बेसिक एलिमेंट जो है बिजनेस कम्युनिकेशन के वो कितने हैं? तो 4 हैं. सेंडर है, बिजनेस इंफॉर्मेशन है, रिसीवर है एंड फीडबैक है. सर फर्स्ट वो कोई भी बिजनेस इंफॉर्मेशन देगा जो कि रिसीवर रिसीव करेगा एंड देन ही विल गिव फीडबैक टू इट, और वो उसके बाद इसमें क्या देगा? फीडबैक देगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ नाउ वी हैव सीन इन स्कूल्स मोस्टली जो भी एक साल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, चाहे जैसा भी स्कूल का एनवायरनमेंट होता है, बच्चे क्या सीखते हैं क्या नहीं सीखते हैं, उन सारी चीजों का फीडबैक पेरेंट्स से लिया जाता है. ठीक है. एक फॉर्म पेरेंट्स को फिल करना पड़ता है. इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म वेदर दे आर सेटिस्फाइड विद द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, दे विल हैव टू टेल टू द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. Yes, जी. समझ Yes, जी. यहाँ पे वही चीज है. सेंडर है, बिजनेस इंफॉर्मेशन देगा रिसीवर को, और रिसीवर वापस से क्या देगा? फीडबैक देगा. एंड देन फीडबैक पर वापस वो काम करेंगे, और फिर इसी तरह से ये जो कम्युनिकेशन है वो चलता रहेगा. तो बिजनेस पर्पस से जो भी कम्युनिकेशन होंगे दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर बिजनेस कम्युनिकेशन. ओके, क्लियर? Yes, जी. Yes, जी. The above elements indicate business communication as a process. Business communication क्या है? It is a process in which information or news related to business, information and news related to business is exchanged between different business parties like customers, suppliers, business clients, employees, etc. सभी, आप घर से बाहर निकलो, every single person is doing business right now, और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन. यू गो टू अ शॉप, you will find that, or whenever we go to a shop, we go for a purpose, right? हमें बुक चाहिए, कॉपी चाहिए, ड्रेसेस चाहिए, ज्वेलरीज चाहिए, कुछ भी चाहिए. तो हम जब उनसे बातें करते हैं तो हम कोई पर्सनल बातें तो नहीं करते हैं. ऑब्वियसली हमें जो चाहिए हम वो डिमांड रखते हैं उनके सामने. सो सप्लायर्स, कस्टमर्स, इनके बीच में भी जो भी बातें होंगी, ऑल दिस विल कम दिस कम्युनिकेशन, है ना? और आजकल तो लोग फीडबैक भी देते हैं, लाइक कि हमने आपकी शॉप से कल ये लिया था और वो ऐसा खराब था, आप ऐसे खराब खराब सी चीजें क्यों बेच रहे हो, इस तरह से हम फीडबैक भी देते हैं. तो कुछ लेना, कुछ देना, उस पर फीडबैक देना, और इन सारी चीजों में जो बातचीत होती है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, उन्हें हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन. क्लियर है?
Yes, the. Yes, the. So first thing, what will you write? You need to remember the introduction. After the introduction, you need to remember the definitions given by the scholars. And the third thing that you need to remember is the basic elements of business communication. What are the basic elements? Sender, business information, receiver, feedback. Okay? Sender, business information, receiver, and feedback. Clear? Yes, the. Yes, the. Yes, the. Now, then comes the internal. Just wait a minute. Yeah, types of business communication is not very important from your exam point of view. It is not even there in the syllabus, but in case you get something from here, you need to know the subtitles. कितने types है बस वो जान लो. You do not need to elaborate. So what are the types of business communication? Internal business communication. Now, internal business communication is of two types: internal upward communication and internal downward communication. Then comes the horizontal, lateral business communication, and the next is external business communication. Now, I will just give you an outline. So, internal business communication क्या है? Internal business communication means communication that occurs within the members of the organization. जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच में ही रहता है, इससे बाहर नहीं जा सकता है. अब ये कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कॉलेज जाते हो, देर आर सम टॉक्स, देर आर सम मैटर्स दैट रिमेन्स विद इन यू, या फिर आप कह सकते हो कि आप ही फ्रेंड सबके बीच में वो सारी बातें रहती है, आप ही एक दूसरे से वो सारी बातें करते हो. आप जितने फ्रेंड्स हो, जितने कलीग्स हो कॉलेज में, आप ही एक दूसरे के बारे में, किसी प्रोफेसर के बारे में बात किया, या फिर किसने कैसा पढ़ाया, इन सारी चीजों के बारे में बात किया. उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बैठ करके आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में बातें कर रहे हो, चाहे वो हाँ, अब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें करो या आप अपनी पर्सनल बातें करो, दैट डजंट मैटर. लेकिन आप उस ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि आपके कॉलेज में बैठकर आप ये सारी बातें कर रहे हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन. ठीक है? अब वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, दैट डजंट. ओके? Yes, the. Yes, the. Now, internal communication should be effective as it is a vital, or you can say important, source of viewing and representing organizational issues. Now, as I said, internal business communication is of two types: upward communication and downward communication. Upward communication क्या है? Bottom to top management approach. Bottom to top management approach. ठीक है? For example, आपने कहीं कोई चीज देखी, you have come up with a very new idea, very fresh idea. So आप सबसे पहले इस आइडिया को किसे बताओगे? आपने चलो इंग्लिश लिटरेचर में एक कुछ रिसर्च कर लिया. ठीक है? आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते पढ़ते आपने कुछ ऐसा टर्म रिसर्च कर लिया जो अभी किसी ने नहीं किया. तो आप इसे ले जाकर के पहले किसे बताओगे? वेदर आप किसी से चेक कराओगे ना, वेदर इट इज और नॉट, तो आप किसके पास जाओगे? ऑब्वियसली योर टीचर्स जाओगे. Yes. सो आप अपने टीचर्स के पास जा रहे हो. देन योर टीचर्स, सपोज करो उन्हें इस चीज के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं है, या फिर उन्हें पता है एंड दे गॉट टू नो दैट यू हैव आइडेंटिफाइड इट, और यू हैव somehow you have got it. वो क्या करेंगे? वो आपके इस रिसर्च को लेकर के जाएंगे एचओडी के पास. ठीक है? आपने ये रिसर्च किया, कुछ आपका रिसर्च गया टीचर के पास और प्रोफेसर के पास, एंड द प्रोफेसर देन डिसाइडेड इट टू टेक अप टू द एचओडी. Then HOD will look after, and when HOD will identify it thoroughly, he or she will decide whether it is correct or not. अगर उन्हें करेक्ट लगता है, then वो आगे जाएंगे किसके पास? प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के पास. ठीक है? एंड देन प्रिंसिपल के पास गया तो समझो ये आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि सबसे छोटे बॉटम से ले मैनेजमेंट के टॉप पोजीशन तक, वर्कर्स, एम्प्लॉइज या फिर स्टूडेंट से लेकर के लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट तक आपकी जो बातें हैं, आपका जो डेटा है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, वो जब पहुंचती है बॉटम टू टॉप, उसे हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन. ठीक है? क्या कहेंगे? अपवर्ड कम्युनिकेशन, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है.
समझ गई बात? समझ आई बात ये? Yes, the. Yes, the. Then downward just इसका opposite. You do not need to work very hard to understand this one. Downward क्या होगा? अब मैनेजमेंट यानी कि प्रिंसिपल से कोई बात आपको पहुंचानी है, तो प्रिंसिपल किसे बताएंगे? एचओडी को बताएंगे. एचओडी विल share this to the professor, and at last professor will come to you and he or she will express you the ideas or datas or information. ठीक है? समझ आई बात? Yes, the. Yes, the. है ना? Then comes the horizontal lateral business communication. So horizontal lateral or horizontal business communication is related to communication among co-workers, co-students. आप लोग स्टूडेंट्स हो, सबके सब स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के बीच में जितनी भी बातें होंगी, जितना भी इंफॉर्मेशन शेयर होगा, वो सारे आएंगे हॉरिजॉन्टल या लैटरल बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर. आपने एक दूसरे को पढ़ाया, आपने एक दूसरे को कोई चीज एक्सप्लेन करी, ठीक है, आप एक कंपनी में काम करते हो, देन यू हैव शेयर्ड आइडियाज विद ईच अदर, ठीक है, कोई भी बिजनेस आइडिया दिया, कोई किसी ने किसी को कुछ सिखाया, ऑल दीज विल कम अंडर horizontal or you can say lateral business communication. Now it does not matter whether it is verbal or written. ठीक है, वर्बल भी हो सकता है, बोल करके भी आप डेटा या फिर कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हो, या रिटन कम्युनिकेशन भी इसमें हो सकता है. ठीक है, आप कुछ लिख करके अपने फ्रेंड को बता रहे हो, कोई आइडियाज दिखा रहे हो, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, समझ आई बात? Yes, the. Yes, Now, the. every single organization, कोई भी organization हो, whether it is a school, college or any other company, सब में horizontal business communication is necessary. For example, there are several professors in your college. So many professors are there. अगर उनके बीच में coordination नहीं होगा, जैसे for example in our college there are so many teachers in the B.Ed department or B.Ed section. अगर उन सबके बीच lateral communication या horizontal business communication नहीं होगा, तो क्लासेस करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे ना. उन्हें एक दूसरे से बातें करनी होगी, that okay you are taking this class and I will take up the next class, or you are teaching this and I will teach that. ठीक है, तो लैटरल कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है. यू आर स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स हो, आप में भी लैटरल कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है. ओनली व्हेन यू वुड बी एबल टू डू अ परफेक्ट वर्क. ठीक है, समझ आई बात? Yes. Yes, the. नाउ लास्ट इज योर एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन. अब एक्सटर्नल क्या है? तो बाहरी communication with people who are external to the organization. ठीक है, एक्सटर्नल कोई है जो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, उनसे जब बातचीत होगी बिजनेस रिलेटेड, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन. नाउ एक्सटर्नल कौन हो सकते हैं? हु कैन बी एक्सटर्नल्स हियर? सो कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स इन कंपनीज, यू नो ना, इन highly affiliated colleges, highly affiliated universities, or maybe any other company, there are some shareholders. कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं. जैसे एक कंपनी है तो अपने शेयर्स बेचती है ना, शेयर्स बेचती है. आजकल तो शेयर्स सभी को पता ही है. Yes, तो the. शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑर्गेनाइजेशन से उनका कोई कनेक्शन नहीं होता. वो जस्ट कुछ स्टेक्स खरीदते हैं या कुछ खरीदने आते हैं या फिर कोई पार्टनर होते हैं. ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी के वो जस्ट पार्टनर होते हैं. उन्हें हम कहेंगे क्या? एक्सटर्नल. उनसे जो बातचीत होगी, उनसे जो भी डेटा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हम करेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन. ठीक है, क्लियर हो गई बात? Yes, Yes, the. the. फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट कॉलेज में हो आप लोग, ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब एग्जाम के पेपर्स चेक होने जाते हैं तो दूसरे कॉलेज में, या फिर देखो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं ना जो कॉलेज एक दूसरे से बातचीत करके किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में अरेंज करवाते हैं.
तो हर एक कॉलेज को वो नोटिस जाता है और हर एक कॉलेज के साथ बिजनेस रिलेटेड कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा नहीं होता है वो, लेकिन फिर भी उनसे जो कम्युनिकेशन होगा, एक्सटर्नल बाहरी लोगों से जो भी कम्युनिकेशन होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लियर है बात? Yes, the Yes, the. नाउ very important, in business communication what you have to read is language of business. business communication का पूरा definition समझ लिया, टाइप समझ लिया, बेसिक एलिमेंट समझ लिया। अब आते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस पे। ठीक है, what is language of business nowadays? What do you think, what is the language of business right now? Which language is considered to be the best language for business, for The any form, sort of business? Hmm? the formal language. या बट कौन सी लैंग्वेज? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, English. असम? English, exactly, English. That's what I'm talking right now. English. Right now, if you go to any big city, any metropolitan city, you will find people speaking in English only. ठीक है, कोई भी, whether in institutions, आप institutions में जाओ, कहीं भी जाओ, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वहां पर ज्यादा वो लोग इंग्लिश में बातें करते हैं, नॉट इन हिंदी, बिकॉज इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यू नो ना, इतनी सारी कंट्रीज हैं और ज्यादा कंट्रीज जो हैं वो सिर्फ इंग्लिश में बातें करती हैं। ठीक है, सो ज्यादातर कंट्रीज क्या करती हैं, सिर्फ इंग्लिश, ज्यादा वो इंग्लिश पर फोकस करती हैं। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, आप बहुत सारे कंपनीज पर जाओ, कंपनीज में भी आजकल क्या होता है, पीपल यूज टू प्रेफर इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये इंग्लिश कैसा होना चाहिए, वी विल टॉक अबाउट दैट, नॉट नॉर्मल इंग्लिश। ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। विल टॉक अबाउट द टोन, स्टाइल, एम्बिग्विटी, एवरीथिंग। So first, language of business. Business language is the language used in business such as in commerce, international trade, insurance and banking. International trade, commerce, insurance, banking, everywhere you need to use specific vocabulary, grammatical structures and clearly and concisely communication is very important. ठीक है, सपोज करो यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस, आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप किसी के साथ बिजनेस डील कर रहे हो एंड बोथ ऑफ यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश एंड सपोज द नेक्स्ट पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, you would not be able to do that deal in a very easy manner, है ना, क्लियर इजीली वो उस डील को नहीं कर पाएगा अगर नेक्स्ट पर्सन आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, सो राइट नाउ देखो, छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं उसमें इतना फोकस नहीं किया जाता। छोटे छोटे बिजनेस में हाँ चलो जो भी बोला, चाहे किसी को घर देना है, घर रेंट पर देना, दैट इज विल बी कंसिडर्ड बिजनेस। ठीक है, तो घर रेंट पर देना है, ठीक है, नॉर्मली कोई भी इंग्लिश बोलो, कैसे भी बोलो चलेगा, हिंदी बोलो चलेगा, जो भी लैंग्वेज आप बोल सकते हो बोल लो। लेकिन जब आप कोई इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, देन यू नीड टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश। आपको जो आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, अब ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, आप बोल रहे हो तो हिंदी नहीं है, वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, आजकल के टाइम में लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज इंग्लिश। लेकिन अगर बिजनेस यहाँ हम देखें तो इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इंग्लिश भी है, हिंदी भी है और रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं। तो जो भी लैंग्वेज हो वो कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स परफेक्ट होने चाहिए और स्पेसिफिक वोकैबुलरी होनी चाहिए। ठीक है, समझ आई यहाँ तक बात? Yes, yes, the. the Now, Yes, the. when using a language in a business context, it is vital to be clear, so nothing is left to interpretation. जब भी आप business कर रहे हो, whenever you are doing business, your language should be
clear. Your language of business should be clear. आप कोई भी business कर रहे हो, आप किसी भी language में बोलो, but you should be clear. आपका जो words होनी चाहिए वो इतनी clear होनी चाहिए so that the next person be able to understand your point. ठीक है, आपका पॉइंट, आपको कितने प्रॉफिट चाहिए, आपका आप कितने शेयर दे रहे हो उन्हें, एवरीथिंग शुड बी क्लियर. ठीक है, समझ गई बात? Yes, the Now, importance of English in business communication. English is, as you know, the most widespread language used for communication. Now, it originated in the early colonization, okay? And at that time, English was introduced to many continents and countries around the world, okay? And as you know, people in many countries eager to learn English as well as as it gives them a window into the world. If you know English now, you can go anywhere, okay? You can do anything. Will you fear, or you will not have that lack of confidence that I won't be able to speak. ठीक है, वो lack of confidence आपके मन में नहीं आएगा if you know the language perfectly. अगर आपको language perfectly आता है, that gives you a window. आपको डर नहीं लगेगा दूसरी कंट्री में जाने के लिए, कोई भी बाहर की कंट्री में जाने के लिए, because you know that you can speak in English. At least you can do something there. At least you can earn money there. ठीक है, so English is very important right now. ठीक है, for business purpose, English is damn important. Okay? yes, the Yes, the ओके, नाउ अगर हम टोन की बात करें, व्हाट इज द टोन? टोन कैसा होना चाहिए? अगर आप किसी से बातें कर रहे हो, आप किसी से बिजनेस कर रहे हो, तो आपका टोन कैसा होना चाहिए? आपको, हम कहते हैं ना कि बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ बेच रहे हो, देन यू शुड नो हाउ टू डू बिजनेस. आप कपड़े ही बेच रहे हो तो आपको कपड़े बेचने के आइडियाज तो होने चाहिए ना. आप कभी देखे होगे, गए होगे अगर मार्केट में, तो जो कपड़े बेचते हैं उनका एक तरीका होता है बोलने का, है ना? वो आपको इतना मक्खन लगाएंगे, इतने प्यार से बोलेंगे, दीदी दीदी ये ले लीजिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है आप पर, यही सबसे अच्छा है, एक क्यों लेते हैं, दो ले लीजिए, है ना? दे हैव अ स्टाइल, है ना? स्टाइल देखा है ना yes, उनका. the yes, बिजनेस the में भी yes, the वही है, बिजनेस कम्युनिकेशन भी वही है. आप बिजनेस कर रहे हो, आपको वो स्टाइल आनी चाहिए. नाउ स्टाइल कैन हैव 4 टाइप्स ऑफ स्टाइल. विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास, बट एज ऑफ नाउ टोन और स्टाइल ये जान लो क्या है. टोन, आप किस टोन में बात कर रहे हो. आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपका टोन कैसा होना चाहिए? शुड बी पोलाइट. बड़े आराम से आप बात करोगे, हेलो सर, and you should have that power of using effective vocabulary. okay, हर पॉइंट पर कैसी कैसी vocabularies आप यूज कर सकते हो, वो नॉलेज आपको होनी चाहिए. you should have the knowledge of using the correct structure of words. ठीक है, वर्ड्स का करेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए. सेंटेंस स्ट्रक्चर शुड बी एफिशिएंट एनफ टू, इतना एफिशिएंट हो कि सामने वाला जो है वो क्या हो जाए, आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाए. ठीक है, समझ आई बात? yes, yes, the the है ना? तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, बेसिक एलिमेंट्स क्या है, स्कॉलर्स ने क्या क्या डेफिनेशंस बताए हैं, साथ ही साथ कितने टाइप्स के बिजनेस कम्युनिकेशंस हैं. ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज क्या है बिजनेस में, व्हाट इज लैंग्वेज इन business language, and then what is importance of English in business communication. Next class we'll discuss tone, ambiguity and style, and the first unit will be done. ठीक है? yes, the yes, the So ambiguity is also very easy. You know, कुछ कुछ words होते हैं, थोड़ा vocabulary जानना होगा आपको. Then या कौन सी vocabulary किस टाइम पर हम यूज कर सकते हैं, you need to know that. कुछ कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे, जैसे राइट नाउ कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, डोंट